हेलो गाइस। आज के हम इस वीडियो में बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइंडिंग एरर्स के अंतर्गत हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आर्टिकल्स जहां पर नहीं लगने चाहिए, अगर सेंटेंस में लग जाते हैं तो वो सेंटेंस में एरर हो जाता है। और फाइंडिंग एरर्स के अंतर्गत सेंटेंसेज में हम नहीं पहचान पाएंगे उन एरर्स को अगर हमें ये फंडामेंटल फैक्ट्स नहीं आते। आज हम देख रहे हैं आर्टिकल्स का थर्ड पार्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के विषय में। और इसका फर्स्ट रूल है, नो वन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जनरली नो वन आर्टिकल इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। आप देख रहे हैं आप सामने सेंटेंस देख रहे हैं और आपको बताया गया कि प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं आपको बताया गया है, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग आर नोन बाय प्रॉपर नाउन एंड नो वन आर्टिकल इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। देन टेल मी वेयर इज एन एरर इन दिस सेंटेंस। एज यू नो, Tulsidas is a proper noun, and here article A or the, none or both is used if you want to correct this sentence. As this one is proper noun and no one article is used generally before proper noun, then this sentence will be correct by removing articles. एंड आपका रूल नेक्स्ट है और आप देख रहे हैं जनरली नो वन आर्टिकल इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन। नो वन आर्टिकल इज यूज्ड के साथ हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एज बाक, अब हम इसमें द डॉग से नहीं कर सकते। ए और एन लगेगा नहीं, क्योंकि ए और एन ये सिंगुलर वर्ड को दिखाता है। द का यूज लोग ग्रुप में करते हैं, ब्रॉड सेंस में करते हैं, लेकिन यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन। dog, dogs, cows give us milk। काउ भी प्लूरल है, इसके पूर्व हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। The books are sold here। This one sentence have an error, and that error is article before plural noun. Then if you want to correct the sentence, then drop out this article and after then the sentence will be correct. Second rule, as you know, that no one article is used with plural nouns. And rule number next है, when proper noun contains titles or professional words before its, then no one article is used with them। जब प्रॉपर नाउन के पूर्व टाइटल आए या कोई प्रोफेशनल वर्ड आए तो भी आप इनके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जोसेफ then
King John, Saint Joseph, Queen Victoria, as you know, Joseph, John, and Victoria is a proper noun. And as I have just told you that whenever a proper noun contains a title or professional word before it, then no one article should be used before them. And next rule is no one article is used with material noun and abstract noun. No one article is used with material noun and abstract noun. कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. What is abstract noun? As I already told you in previous videos, that the nouns that can't be touched but only be felt is known by abstract noun. यानी कि ऐसे नाउन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एंड मटेरियल नाउन कंटेन्स ऑल द सब्सटेंस विद विच न्यू आर्टिकल में बी फाउंड. मटेरियल नाउन में वो सारे सब्सटेंस आते हैं जिनसे नई चीजें बनाई जा सके. तो आपने जाना मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. ही loves a beauty, and as soon as I use a before beauty, then sentence would be incorrect. As you know, beauty is abstract noun. It can't be touched but only be felt. Beauty is abstract noun, and I just told you that no one article is used with material noun or abstract noun. And if you want to correct the given sentence, then just drop out article A. After then the sentence will be correct. The gold is a precious metal. The gold is a precious metal. Find out where an error occurred here. कहां पर गलती हो गई यहां पर. Yeah, gold is material noun and no one article is used, even material noun. Then one must drop THE to correct the sentence, and the correct sentence will be gold is a precious metal. But I want to tell you that when material noun has its specific meaning, then article the may be applied with them. When material noun has its specific meaning, then in this condition article the should be applied with them. अभी आपको बताया गया, generally no one article is used with material noun or abstract noun, but if you want to give a specific meaning with material noun, then in this condition article the is applied with them. देखिए
यहां पर गोल्ड इज प्रीशियस मेटल से हमने द ड्रॉप किया है, और ये एग्जांपल है द गोल्ड ऑफ माई ब्रेसलेट इज प्योर। क्या हम यहां से भी आर्टिकल द को ड्रॉप करेंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया यहां पर अपनी स्पेसिफिक बात है। यहां पर जनरली आप जानते हैं सोने की, गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी, कोई भी गोल्डन आइटम प्योर गोल्ड का नहीं होता। आप लोग घर परिवारों में भी देखते होंगे 99% से कहीं ज्यादा सोने का कोई भी आइटम है वो प्योर गोल्ड का होगा नहीं, कुछ ना कुछ मिक्सअप करते हैं, क्योंकि गोल्ड फ्लेक्सिबल मटेरियल है और लोग बहुत ही लाइट वेट का बनाते हैं और उसका साइज बढ़ा देते हैं और उसे रिजिडनेस देने के लिए कुछ ना कुछ मिक्स कराना पड़ता है। लेकिन जब कोई कहता है नहीं, माई ब्रेसलेट, गोल्ड ऑफ माई ब्रेसलेट इज प्योर, मेरा ब्रेसलेट शुद्ध सोने का बना है, तो ये बताइए जो अन्य चीजों का सोना है और उसके ब्रेसलेट के सोने में कुछ अंतर है? जी, कोई स्पेसिफिक बात है? जी हाँ। जनरली किसी भी गोल्डन आइटम का गोल्ड प्योर नहीं होता, 99% से कहीं ज्यादा प्योर नहीं होता। लेकिन जब कोई कहता है कि नहीं ये मेरा ब्रेसलेट प्योर गोल्ड का है, तो अन्य चीजों के सोने में और इस ब्रेसलेट के सोने में स्पेसिफिक बात है, ये शुद्ध सोने का बना है और कोई सोने का आइटम शुद्ध सोने का नहीं बनता, इसलिए यहां पर ड्रॉप आउट नहीं किया जा सकता। यहां पर सोने की शुद्धता इसका स्पेसिफिक रीजन है जिसके कारण आप आर्टिकल द लगाते हैं। और मैंने बताया है कि जब मटेरियल अमाउंट से कोई खास बात बताना हो तो आप इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, वाटर ऑफ गंगा इज वेरी यूजफुल। अगर हम कर रहे वाटर इज वेरी यूजफुल द, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया। ये क्यों? क्योंकि जनरल सी बात है यार, कॉमन सी बात है, वाटर है तो यूजफुल है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने जाने तक पानी का जीवन में बहुत उपयोग है। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं लगता, तो पानी यूजफुल है, ये कॉमन सी बात है पानी की यूजफुल होने के लिए, इसलिए यहां पर आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्यों? द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी यूजफुल। क्योंकि मैंने बताया जब कोई स्पेसिफिक क्वालिटी बताना हो, कोई खास बात बताना हो, तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या खास बात है गंगा के पानी में और सामान्य पानी में? पहली बात आप जानते हैं, सामान्य पानी को 4-6 दिन भर के रख दीजिए, उसमें जम्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। कहने के लिए इतना पॉल्यूशन है गंगा नदी में या किसी भी नदी में, उसके बावजूद भी हम लोगों के घरों में गंगा जल सालों साल भरा रहता है बॉटल्स में, उसके बाद भी कभी उसमें जम्स नहीं देखे जाते, कभी कोई जम्स देखा ही नहीं गया। कोई नहीं कह सकता कि हमारे गंगा जल में कीड़ा पड़ गया है। सोचिए, खास बात तो है, अन्य पानी को 2-4 दिन भर के रख दीजिए, उसमें जम्स ओरिजिनेट हो जाते हैं, गंगा जल में जम्स ओरिजिनेट नहीं होते। और खास बात, जहां जहां सामान्य जल का उपयोग कर सकते हैं उस हर जगह आप गंगा जल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बताइए जहां पर गंगा जल का उपयोग होता है वहां पर सामान्य जल का उपयोग हो सकता है क्या? जी नहीं। जैसे जब लोग दुनिया छोड़ने वाले होते हैं या घर में कोई पूजा प्रतिष्ठान हो रहा है, वहां पर लोग गंगा जल ही मांगते हैं, सामान्य जल नहीं। तो ये गंगा जल की विशेषता है, ये इसमें जम्स नहीं पड़ते और
जहां पर सामान्य जल का उपयोग होता है वहां गंगा जल यूज किया जा सकता है, लेकिन जहां पर गंगा जल का उपयोग होता है वहां पर सामान्य जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये इसकी स्पेसिफिसिटी है, ये इसकी विशेषता है, ये इसकी पिक्यूलियरिटी है। तो मैंने पहले बताया है कि जब मैटेरियल नाउन में कोई खास बात दिखाना हो, कोई विशेषता बताना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। रिमेंबर दैट, कीप इन योर माइंड दैट व्हेन सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन give when singular number common noun has broad sense, then no one article is used with that. जब सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक सेंस के लिए हो तो आप इसके पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, आप नहीं कर सकते। A man is mortal, आप नहीं कर सकते। द मैन इज सोशल एनिमल, सोशल एनिमल बोले तो सामाजिक प्राणी है। फर्स्ट आप देख रहे हैं, इसमें है आ मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब होता है एक आदमी नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। क्या एक ही आदमी? मैंने बताया ये सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है, कॉमन नाउन है, और इसका प्रयोग जब व्यापक सेंस में हो तो इसके पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मानव है, कहीं का भी है, किसी भी देश का भी है, ब्रह्मांड में कहीं भी मानव है तो उसका नष्ट होना निश्चित है। तो जब आदमी के लिए नष्ट होना निश्चित ही है तो हम यहां पर आर्टिकल ए या द क्यों लगाएंगे? क्योंकि ए लगाने से एक हो जाएगा और द लगा देंगे तो कोई पर्टिकुलर मानव, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ही नष्ट होगा। जब सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन का व्यापक सेंस हो तो इसके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसमें लिखा मानव नश्वर है, आदमी नश्वर है, वो दुनिया के किसी भी कोने का मानव है तो उसका नष्ट होना निश्चित है। व्यापक सेंस से, इसलिए हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां भी देखिए, द मैन इज सोशल एनिमल, इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। आज से 5000 साल पहले एरिस्टोटल ने कहा था मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका समाज में रहना नितांत आवश्यक है। फिर भी यदि कोई मानव समाज में नहीं रहता, समाज से दूर रहता है, समाज से अलग रहता है, तो मानव तो हो ही नहीं सकता। या तो वो देवदूत है या फिर दानव है, क्योंकि इन्हीं दोनों के पास सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। और आदमी की इतनी ज्यादा नीड्स हैं कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो समाज में लोगों के बीच रहता है। जब हमारी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो हम क्यों लोगों के बीच में रहेंगे? तो जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होता है वो ऐसा कर सकते हैं। सोक्रेटिस ने कहा वो या तो दानव होगा या देवदूत, बोथ हैव सुपर नेचुरल पावर, वॉट एवर दे वॉन्ट दे कैन फुलफिल बाय मैजिक और बाय हिज पावर, सुपर पावर। तो इसमें लिखा है मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या खाली आप सामाजिक प्राणी है? केवल पड़ोसी? दुनिया का कहीं का भी प्राणी है, समाज में रहना नितांत आवश्यक है। समाज के बिना वो रह नहीं सकता, क्योंकि समाज के बिना उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इसलिए ये भी व्यापक सेंस है, इसलिए इसके पूर्व भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा लगाते हैं, द लगाते हैं तो हो जाएगा कोई पर्टिकुलर आदमी सामाजिक प्राणी है, शेष नहीं। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, ये स्पेशल नोट्स है कि जब एक्सेप्शन पॉसिबल हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जब सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक सेंस में हो, लेकिन अगर एक्सेप्शन पॉसिबल है
तो आप आर्टिकल द का प्रयोग उसके पहले कर सकते हैं। जैसे कुत्ता एक वफादार प्राणी है, लिखा है। ये भी मैन की तरह सिंगुलर नंबर है, कॉमन नाउन है, और ये भी ब्रॉड सेंस रखता है कि जितने भी प्रकार प्रजाति के कुत्ते होते हैं, लगभग 250 प्रजाति के कुत्ते होते हैं, इन सब में फेथफुलनेस होती ही है, तो व्यापक सेंस है। लेकिन जरा याद करिए, जिस कुत्ते को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसका केयर करते हैं, कभी वही कुत्ता हमें स्क्रैच कर देता है, हमारी स्किन को खरोच लेता है, वही कुत्ता कहीं कभी दांत गड़ा देता है, तो क्या ये भी उसका फेथफुलनेस है? क्या ये एक्सेप्शन है? और जहां पर एक्सेप्शन पॉसिबल होंगे वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग हम कर सकते हैं, और ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। जितने भी व्यक्ति देखेंगे उन सबका समाज में रहना आवश्यक है। कोई व्यक्ति बिना समाज के रह ही नहीं सकता। या आपने किसी को देखा है कि कोई व्यक्ति है जो समाज में नहीं रहता, अकेले सारी जरूरतें पूरी कर लेता है जीवन की? नहीं, एक्सेप्शन पॉसिबल नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं। जब से सृष्टि शुरू हुई आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना नष्ट हुआ। मॉर्टल नश्वर होना होता है, नष्ट होना होता है। भगवान भी मानव रूप में आए तो उन्हें भी ये देह नष्ट करना पड़ा, तो यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब कहीं पर एक्सेप्शन पॉसिबल हो तो वहां पर उस स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपका रोल नंबर नेक्स्ट है, और मैं आपको बता रहा हूं, जब नेम ऑफ रिलेशन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह किया जाए, व्हेन नेम ऑफ रिलेशन is used as proper noun, then no article should be used with them. आपको हमने बताया, जब नेम ऑफ रिलेशन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह किया जाए तो आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग इनके पहले नहीं करना होता है। जैसे मदर हैज गॉन फॉर शॉपिंग, मदर हैज गॉन फॉर शॉपिंग। और नेक्स्ट है डॉक्टर एग्जामिन डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, मदर डॉक्टर, या आपको बता दूं यहां पर नेम ऑफ रिलेशन मदर है, डॉक्टर है, ब्रदर है। जब नेम ऑफ रिलेशन का यूज प्रॉपर नाउन की तरह हो, मां शॉपिंग के लिए गई हैं, डॉक्टर ने पेशेंट को एग्जामिन किया है, देखा है, चेक किया है पेशेंट को, और क्या भाई अंदर हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इनके पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर किया तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट। आप मदर कर नहीं सकते, आप द डॉक्टर कर नहीं सकते, और इसके साथ भी आप कुछ लगा नहीं सकते, और अगर लगाएंगे इस हाल पर तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको बताया गया
जब नेम ऑफ रिलेशन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह हो तो आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते इसके पहले। कोई पूछता है क्यों जी मम्मी कहाँ है, तो लोग बताते हैं मदर हैज गॉन फॉर शॉपिंग। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, क्यों फलाने कहाँ है, राजेश कहाँ है, पूनम कहाँ है, तो वैसे ही हम मदर को पूछे मम्मी है क्या, तो बताया नहीं मम्मी शॉपिंग को गई है। तो मदर, डॉक्टर और ब्रदर का यूज यहाँ पर प्रॉपर नाउन की तरह हुआ है। जब नेम ऑफ रिलेशन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह हो तो आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग इनके पूर्व नहीं करते। आपने ये एग्जांपल्स देखे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन, बेड, कोर्ट, हॉस्पिटल, टेम्पल का प्रयोग अपने उद्देश्यों अर्थात इन स्थानों पर होने वाले मुख्य कार्य के लिए होगा तो आप इनके पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब इन नाउन्स का प्रयोग होगा यहां पर होने वाले मुख्य कार्य के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य कार्य के लिए, तो आप बेशक इनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, उसके पहले रोग आपने देखा, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन, बेड, कोर्ट, हॉस्पिटल, टेम्पल इन सब का प्रयोग इनके उद्देश्यों के लिए हो अर्थात इन स्थानों पर होने वाले मुख्य कार्यों के लिए हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इन नाउन्स के प्रयोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अध्ययन या अध्यापन होता है। कोई पढ़ता है, कोई पढ़ाता है। यही मुख्य कार्य है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के। अगर लोग इन कार्यों के लिए जाएंगे तो हमें इनके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा। जब स्टूडेंट्स जाएंगे, टीचर्स जाएंगे, प्रोफेसर जाएंगे तो ये यहां पर होने वाले कार्यों के लिए जाते हैं। तो इनके पूर्व स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब वहां पर जाएंगे, वहां पर होने वाले कार्य के लिए नहीं किसी अन्य कार्य के लिए, तो इनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सपोज दैट फादर आपके विद्यालय गए, फादर गए तो सीधी सी बात है फादर आपके विद्यालय पढ़ाने नहीं गए, पढ़ने नहीं गए, वे किसी अन्य कार्य से गए। या तो उन्हें फीस जमा करना था या किसी मैटर को लेकर आपने के प्रधानाचार्य से, आपके प्रिंसिपल से, टीचर से मिलना था। तो जब भी लोग यहां जाएंगे वहां पर होने वाले कार्य, मुख्य कार्य के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य कार्य के लिए, तो आप इनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। टेम्पल या चर्च या मास्क, मस्जिद, मैंने यहां लिखा नहीं होगा मास्क, यहां पर लोग पूजा, उपासना, आराधना के लिए जाते हैं। जब लोग यहां इस काम के लिए जाएंगे तो उनके जाने के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मदर गोज टेम्पल एवरी डे, ये सेंटेंस है, ये मां मंदिर हर दिन जाती है। क्यों जाती है? पूजा करने जाती है। लेकिन अगर आपको लगा यार मां तो अभी तक आ जाती थी, अभी तक आई नहीं, क्यों नहीं आई, तो आप भी दौड़े दौड़े मंदिर जा रहे हैं, ये बताइए आप मंदिर पूजा करने जा रहे हैं क्या? नहीं, आप किसी अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं। आप इस कार्य के लिए जा रहे हैं मंदिर कि देखते हैं मां अभी तक क्यों नहीं आई, क्या हुआ। ऐसी स्थिति में लगेगा, मेरी बात समझिए। हॉस्पिटल है, बेड है, कोर्ट है, कोई भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, कोई करता है और कोई कराता है। यानी कि जब पेशेंट और डॉक्टर हॉस्पिटल जाएंगे तो पेशेंट और डॉक्टर जब जाएंगे तो हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन पेशेंट के साथ
उनका केयर टेकर भी जाता है, तीमारदार भी जाता है उनके साथ एक, तो उस व्यक्ति के जाने के पहले होगा, क्योंकि वो जो बीमार पेशेंट के साथ लोग जाते हैं एक दो, वो ना तो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं और ना अपना कराने जा रहे हैं, वो तो किसी अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं, वो तो केयर करने जा रहे हैं पेशेंट की। तो ऐसी स्थिति में आप दवा का प्रयोग करेंगे। बेड भी आया है यहाँ पर। बेड का मुख्य कार्य सोना है। जब बेड में लोग सोने के लिए जाएंगे तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन लोग बेड पर खाते हैं, पढ़ते हैं, इंडोर गेम खेलते हैं, चेस कैरम वगैरह भी खेल लेते हैं। ऐसी स्थिति पर आप बेड के पहले दवा का प्रयोग करेंगे। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इस रूल को समाप्त करता हूं कुछ एग्जाम्पल के बाद। ये आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे भाई? स्टूडेंट पढ़ने के लिए ना। तो अभी आपको बताया गया जब लोग इन स्थानों पर होने वाले मुख्य कार्य के लिए जाते हैं तो इनके पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगता, और यहां पर लग गया है, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया है। और अगर आप इस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट ड्रॉप आउट आर्टिकल द बिफोर स्कूल। सेकंड है फादर वेंट टू द स्कूल टू विजिट द प्रिंसिपल। यहां भी आर्टिकल द लगा है, यहां से भी ड्रॉप आउट करेंगे क्या? जी नहीं, क्योंकि फादर स्कूल गए पढ़ने नहीं, पढ़ाने नहीं, बल्कि किसी अन्य कार्य के लिए गए हैं, इसलिए यहां पर आर्टिकल द लगा रहेगा। ये सही है। मदर गोज टू द टेम्पल एट डॉन। एट डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास मान लीजिए। तो माँ अर्ली मॉर्निंग मंदिर जाती हैं। क्यों आदमी मंदिर जाता है? सुबह शाम भाई पूजा करने, आराधना करने, कुछ मिन्नतें करने, कुछ प्रार्थना करने। तो ये मंदिर पर होने वाला मुख्य कार्य है। तो जब लोग मुख्य कार्य के लिए जाते हैं तो उसके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ ड्रॉप आउट करना होगा। तो नेक्स्ट देखिए, लेबरर्स आर गोइंग टू टेम्पल फॉर रिपेयरिंग। लेबरर्स मंदिर जा रहे हैं, किस लिए? रिपेयरिंग के लिए। तो हमने मंदिर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया, ये सही है ना? जी नहीं, ये भी सही नहीं है। जब लोग इन स्थानों को जाते हैं, वहां पर होने वाले कार्य नहीं बल्कि किसी अन्य कार्य के लिए, तो इसके पहले आर्टिकल दा लगता है, तो ये इनकरेक्ट है। इसे करेक्ट करने के लिए आपको यहां दा लगाना होगा। रूल नंबर 8 और मैं आपको बता दूं कि नो वन आर्टिकल इज यूज्ड विद डिजीजेस। No one article is used with diseases, regular meals, no one article is used with diseases, regular meals, and games and sports. Games and sports. किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते किसी भी बीमारी के पहले। अभी आपको मैंने बताया, नो वन आर्टिकल इज यूज्ड विद डिजीजेस, रेगुलर मील्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते आप बीमारियों के पहले। रेगुलर मील्स क्या होता है? ये होता है जैसे ब्रेकफास्ट, नियमित लिया जाने वाला आहार, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, ये शाम का भोजन होता है जो लेते हैं, और डिनर, ये रेगुलर मील्स कहलाते हैं। इनके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और गेम्स और स्पोर्ट्स के पहले होता ही नहीं। आपको बता दूं, बीमारियों के पहले नहीं होता, लेकिन केवल 4 बीमारियां हैं जिनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और वो बीमारियां हैं मम्स, मीजल्स, रिकेट्स,
और है ड्रॉट्स, प्लेग, प्लेग। ये 4 बीमारियां हैं जिनके पहले आपको अटकलता का प्रयोग करना ही होगा, और अगर इनके पहले अटकलता का प्रयोग नहीं किए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इनके अलावा दुनिया की किसी भी बीमारी के पहले कोई अटकलता नहीं लगता। रेगुलर मील्स के पहले नहीं लगता। रेगुलर मील्स क्या होता है? मैंने लिखा ब्रेकफास्ट, लंच, सफर, डिनर। गेम्स और स्पोर्ट्स के पहले होता नहीं। तो देखिए ये मेरे सेंटेंस सही हैं या नहीं। जी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स इस रूल से रिलेटेड, और बताइए ये मेरे सेंटेंस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट। आपका फर्स्ट है, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। फाइंड आउट करिए ये सही है या गलत है। जी ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अटकलता लग गया। क्यों? क्योंकि ये मलेरिया डिजीज है और किसी भी डिजीज के पहले अटकलता का प्रयोग होता नहीं है, सिवाय इन 4 के, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स और प्लेग। कोई बात नहीं। शी इज डाइड ऑफ द कैंसर। वो कैंसर से मर गई। कैंसर भी डिजीज है और किसी भी बीमारी के पहले कोई अटकल नहीं लगता, और इसे सही करने के लिए इस द को ड्रॉप करना पड़ेगा। सेंटेंस सही हो जाएगा, और जब तक ड्रॉप नहीं करेंगे सेंटेंस सही नहीं रहेगा। आप देखें, मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये इन्फेक्शियस डिजीज है। के पहले क्वेश्चन नहीं लगाया तो बिना लगाए ये गलत है, क्योंकि मीजल्स उन बीमारियों में है जिनके पहले अटकलता लगता है। इस सेंटेंस को सही करना है तो आपको इसके पहले अटकलता का प्रयोग करना होगा। Nowadays people like the cricket most। आजकल लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। ये गेम है और गेम के पहले भी हम आर्टिकल लगाए बैठे हैं, जो गलत हो गया। सही करना है, द को ड्रॉप करिए। पीपल ऑफ बंगाल टेक फिशेज इन द डिनर या लंच। पहली बात ये फिशेज नहीं होगा। मैंने रूल्स ऑफ नाउन में आपको बताया था, जब मछलियों को एक समूह के रूप में देखा जाता है या भोजन के रूप में देखा जाता है तो मछलियों का प्लूरल फिश ही रहता है। फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। इफ यू टेक द फिश एज अ फूड और एज अ कलेक्शन। तो यहां पर पहले हमें ये दोनों हटाना होगा, तब सही होगा। और आगे फिर हमसे गलती है, रेगुलर मील्स डिनर या लंच होंगे, और रेगुलर मील के पहले भी आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इस तरीके से ये हमारे एग्जांपल से है। आपका रोल नंबर। जब नेचर का मीनिंग प्रकृति हो, मतलब सराउंडिंग्स हो, एनवायरमेंट हो, तो नेचर का एन कैपिटल हमेशा रहेगा। जब नेचर का मीनिंग प्रकृति हो, यानी कि एनवायरमेंट हो या सराउंडिंग्स हो, तो एन हमेशा कैपिटल में होता है, और इसके पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और ध्यान से सुनिएगा, जब नेचर का मीनिंग प्रकृति हो, नेचुरल थिंग्स हो, सराउंडिंग्स हो, एनवायरमेंट्स हो, तो फिर आप इसके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और ऐसे नेचर का एन कैपिटल रहता है। आपका रूल नेक्स्ट है 10। ये मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल का लास्ट रूल बताने जा रहा हूं कि नो वन आर्टिकल इज यूज विद डेज, मंथ्स, सीजन्स, नेम। दिनों, महीनों तथा मौसमों के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और ध्यान से सुनिए, दिनों संडे टू सैटरडे, महीनों
January to December, और सीजन्स समर, विंटर, रेन, ये किसी भी सीजन, दिन और मंथ्स के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आप नहीं कर सकते आज संडे इज हॉलीडे। आप ये भी नहीं कर सकते द जून इज हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। आप ऐसा भी नहीं कर सकते द स्प्रिंग shows prosperity while autumn shows calamity। आप नहीं कर सकते। देखिए, आपको बताया गया है दिनों, महीनों तथा मौसमों के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये दिन का नाम है और यहाँ पर ए लगाए बैठे हैं तो ये गलत हो गया। सही करने के लिए इसे ड्रॉप करना होगा। द जून इज हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये महीना है। महीने पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया जो गलत है, और ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है और यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया है तो गलत है। यानी कि इस द को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा। हॉट सुपरलेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है और महीनों पहले नहीं होता। तो यहाँ पर जून के पहले आया तो यहाँ पर नहीं, तो हमने इस द को ट्रांसफर कर दिया सुपरलेटिव डिग्री हॉटेस्ट के पहले, सही हो गया। आपने देखा है सीजन के पहले भी नहीं करते। स्प्रिंग शोज प्रॉस्पेरिटी, जो स्प्रिंग है वो संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी दिखाती है, इसके पूर्वाधिकार है, इसे हटाना होगा। वेल एंड ऑटम शोज कैलामिटी, जबकि पतझड़ ये मुसीबत को दिखाता है। ये भी मौसम है, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सही करने के लिए यहां से एंड को हटाना होगा। इस तरीके से ये फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाइंडिंग एरर्स के लिए, करेक्ट ट्रांसलेशन के लिए, करेक्ट स्पीकिंग के लिए। तो आप इनका नोट्स बनाएं, और अगर वीडियोस पसंद आए और आप चाहते हैं ये ऐसे वीडियोस यूजफुल है, आपको मिलते रहें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।